Hello everyone. In this video, we will discuss on the topic of marketing environment. What is marketing environment? Marketing environment concerns the influences of variables of the external and internal environment of a firm that controls the marketing management's capability to construct and preserve the flourishing relationship with the consumer. An assortment of environmental forces affects a company's marketing arrangement. तो मार्केटिंग इन्वायरमेंट में इंटरनल और एक्सटर्नल बहुत सारे वेरिएबल्स आते हैं जो कि एक मैनेजमेंट के कैपेबिलिटी को इंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको बनाते हैं. A few of them are, जितने भी सारे वेरिएबल्स हैं उनमें से कुछ है, उनमें से कुछ गवर्नेबल होते हैं. A few of them are governable while others are unmanageable. मतलब कुछ के ऊपर अपना कंट्रोल रहता है और कुछ फैक्टर्स के ऊपर अपना कंट्रोल नहीं रहता है. It is the task of the marketing manager to modify the company's policies together with the shifting environment. देखिए, जितने भी इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में एलिमेंट्स हैं उनमें से कुछ अपने कंट्रोल में और कुछ अपने कंट्रोल में कुछ नहीं है. तो उसी के अकॉर्डिंग ये मैनेजर का एक टास्क है कि अपने पॉलिसीज में जरूरत के हिसाब से कुछ मॉडिफिकेशन वो करेगा. मैक्रो एंड माइक्रो इन्वायरमेंट कंप्राइज द स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केटिंग इन्वायरमेंट. देखिए, मार्केटिंग इन्वायरमेंट का जो स्ट्रक्चर है उसमें मैक्रो और माइक्रो ये दो कैटेगरीज के आते हैं जिसका आगे डिस्कस किया जाएगा. Definition of marketing environment. According to Philip Kotler, a company's marketing environment consists of the internal factors and forces which affect the company's ability to develop and maintain successful transactions and relationships with the company's target customers. Elements of marketing environments. There are mainly two elements, micro environments and macro environments. Under micro environments, customer, supplier, reseller, competitors and the general public. Under macro environment, economic factors, demographic factors, technological factors, natural and physical forces, political and legal forces, social and cultural forces. In this video, we will discuss on micro environments factors. These are, and in next video we will discuss over macro environment factors. First of all, what is the micro environment? The micro environment is basically the environment that has a direct impact on business. Micro environment ये वो environment है जिसका बिजनेस के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट, प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है. It is related to the particular area where company operates and can directly affect all the business processes. The micro environment includes, जैसा पहले डिस्कस हुआ था, customers, suppliers, resellers, competitors and the general public. Next, what is the macro environment? The macro environment is more general. It is the environment in the economy itself. It is quite dynamic, which means that a business has to constantly track its changes. It consists of external factors that the company itself doesn't control but is certainly affected by. देखिए, जो मैक्रो एनवायरनमेंट होते हैं जनरली ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं होता है. उनके उस फैक्टर्स के अकॉर्डिंग कंपनी को अपने पॉलिसीज में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं. द फैक्टर्स दैट मेक अप द मैक्रो एनवायरनमेंट आर, पहले डिस्कस हुआ था, इकोनॉमिक फैक्टर्स, डेमोग्राफिक फोर्सेस, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, नेचुरल एंड फिजिकल फोर्सेस, political and legal forces and social and cultural forces. Now we will discuss over micro environment factors.
These are customers, supplier, reseller, competitors, and the general public. Now first is customer. The kind of customer base that your company attracts, as well as the reasoning behind purchasing your product, are going to highly affect the way you create marketing campaigns. देखिए, द काइंड ऑफ कस्टमर बेस्ड ऑन योर कंपनी, हमारे कंपनी में जो बेस्ड है कस्टमर जो अट्रैक्ट हुए हैं, एज वेल एज द रीजनिंग बिहाइंड परचेजिंग योर प्रोडक्ट, और जो हमारे प्रोडक्ट को परचेस करने के पीछे का जो रीजनिंग है वो आर गोइंग टू हाईली अफेक्ट द वे यू क्रिएट मार्केटिंग कैंपेन। जो हम मार्केटिंग कैंपेन करते हैं उसके तरीके को बहुत ज्यादा अफेक्ट करने वाले हैं। योर कस्टमर्स कैन बी टू बी, मतलब बिजनेस टू कस्टमर, वो बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस, इंटरनेशनल, लोकल एंड सो ऑन। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रिलेटेड टू कस्टमर आर स्टेबिलिटी ऑफ डिमांड। देखिए, अब कस्टमर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो सब ये हैं, स्टेबिलिटी ऑफ डिमांड, कि कस्टमर उस प्रोडक्ट का डिमांड स्टैब्लिश वे में कर रहा है कि नहीं, प्रोस्पेक्ट्स ऑफ सेल ग्रोथ, रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी, इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन। ये जो फैक्टर्स हैं ये रिलेटेड हैं कस्टमर से। सेकंड वन इज सप्लायर्स। इफ अ सप्लायर ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट is the largest or even the only one, they are certainly going to have a big influence on how successful your business is. कभी कभी जो हमारा प्रोडक्ट है जैसे रॉ मटेरियल, उसके सप्लायर ज्यादा भी हो सकते हैं, लार्जेस्ट हो सकते हैं, और कभी एक भी हो सकते हैं। जनरली हमें एक ही सप्लायर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा सप्लायर रखने चाहिए। हो सकता है एक सप्लायर अगर किसी खास टाइम पे हमें माल सप्लाई करने में इनसफिशिएंट हो जाए, या फिर माल सप्लाई नहीं कर पाए, इसलिए एक से ज्यादा सप्लायर के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। द सप्लायर्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, एज सप्लायर भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एज की लिंक इन द वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस, इंश्योरेंस दैट योर बिजनेस हैज द नेसेसरी रिसोर्सेस, essential determinants in term of price increase or decrease। देखिए, ये की लिंक इन द वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस, वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस में की लिंक का काम करता है। ये हमें एश्योर करता है कि हमारे पास जो रिसोर्स है वो नेसेसरी रिसोर्स अवेलेबल है, प्रचुर मात्रा में रॉ मटेरियल अवेलेबल है। देख सकते हो, इसेंशियल डिटर्मिनेंट्स इन टर्म ऑफ प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज। ये सप्लायर किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज डिक्रीज में भी अपना रोल प्ले करते हैं। जैसे मान लिया अगर हमें वो लोग रॉ मटेरियल ही सस्ते में उपलब्ध नहीं करा पाए, तो फिर हमको जो माल बेचना होगा वो प्राइस बढ़ा करके बेचना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे लॉजिक हैं। थर्ड वन इज रीसेलर्स। इफ यू डिसाइड टू सेल योर प्रोडक्ट वाया अ थर्ड पार्टी reseller or middleman such as wholesalers and retailers, then the success of your marketing is going to be highly dependent on them। अगर आपने डिसाइड किया है कि किसी थर्ड पार्टी से अपने माल को हम लोग बेचवाएं, जैसे कि मिडिलमैन में होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, तब ये भी हमारे बिजनेस को हाईली इफेक्टेड करने वाले हैं। इफ लेट्स से अ सर्टेन रिटेल सेलर्स हैज अ स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन, इट विल पास ऑन टू योर प्रोडक्ट। अगर किसी रिटेलर का बहुत अच्छा रेपुटेशन मार्केट में है तो वो हमारे प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से बेच पाएगा, जिसका फायदा हमारे प्रोडक्ट को मिलेगा। एज अ लिंक बिटवीन यू एंड द कस्टमर, जैसे आपके और कस्टमर के बीच यानी बिजनेस कस्टमर के बीच ये लिंक का काम करते हैं। दे आर इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ दिस फैक्टर्स। तो इन फैक्टर के उनके इंपॉर्टेंस प्रमोशन, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, फाइनेंशियल, मीडिएशन। Next, fourth one is competitors. Logically, every business that sells the same or a similar kind of product as you do is your competition on the market। तो एक ही तरह के माल बेचने वाले जितने भी बिजनेसमैन हैं वो सब आपस में कंपटीटर है। जैसे मान लिया हमारा जो बिजनेस है, अगर उसी तरीके का माल बेचने वाला जो मार्केट में, वो हमारा कंपटीटर। सो देयर सेल एंड मार्केटिंग टैक्टिक्स मैटर टू यू अलॉट। तो उनका जो सेल और मार्केटिंग टैक्टिक्स है वो बहुत मैटर करता है हमारे लिए। यू नीड टू आंसर वेरियस क्वेश्चंस सच एज हाउ
their product and its price affects yours and how you can make use of that in order to gain an edge over them. कि जैसे उनका जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस किस तरीके से हमारे प्रोडक्ट के प्राइस को अफेक्ट करने वाला है, उसी के हिसाब से हम अपना बनाएंगे स्ट्रेटेजी. द 3 factors that matter in this case are desire competition, product from competition, ब्रांड कंपटीशन. ठीक है, डिजायर कंपटीशन इच्छिक प्रतियोगिता होगी. प्रोडक्ट फॉर्म कंपटीशन, प्रोडक्ट के जैसा जो कंपटीशन है, जैसे हमारे टाइप का प्रोडक्ट और कितने लोग बेच रहे हैं. ब्रांड कंपटीशन, हमारा ब्रांड का कितना वैल्यू दूसरों के ब्रांड के कंपैरिजन में. लास्ट 5th इज द जनरल पब्लिक. इट इज extremely important how your actions affect others because their opinion can be the one thing that either pushes you towards success or pulls you down from the pedestal. देखिए, अब जनरल पब्लिक का ओपिनियन वो भी बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है. उनका जो ओपिनियन है वही हमारे बिजनेस को नीचे से बुलंदी की ओर चढ़ा देगा और टॉप से बिल्कुल गिरा करके बॉटम की ओर ला सकता है. सो द जनरल पब्लिक इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन, मीडिया, इन्वायरमेंटल, पॉल्यूशन. पब्लिक ओपिनियन इसका ख्याल रखना है हमारे बिजनेस के लिए. मीडिया भी जनरल पब्लिक में ही आती है. और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, जैसे देखते हैं इन्वायरमेंटल का, अगर हम इन्वायरमेंट पॉल्यूशन का ख्याल नहीं रखेंगे तो भी हमारा बिजनेस के लिए खतरनाक हो सकता है. तो ये सब सारे फैक्टर्स थे, ये सब थे माइक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स. अब नेक्स्ट वीडियो में डील किया जाएगा मैक्रो एनवायरनमेंट. ओके, थैंक यू.